students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 2 of your class 4 EVS, that is our green friends. Who are our green friends? You know, plants and trees are our green friends because without plants we cannot live. Plants give us fruits and vegetables. Plants give us oxygen to live a healthy life. Without oxygen, the life is not possible at all on earth. So let's begin with the lesson. First, we will read the poem given by Rodney Bennett. It is a very nice poem. Little brown seeds round and round. एक छोटी सी seed round and round. Here I put you in the ground. आप उसको ground में put करते हो. You can sleep a week or two. आप उसकी एक week के लिए और 2 week के लिए छोड़ो. Then I will tell you what to do. फिर हम बताएंगे आपको क्या होता है. You must grow some downward root. उसमें कुछ ना कुछ downward root ज़रूर आएगी 1 या 2 week में. Then some tiny upward shoots. उसमें फिर कुछ tiny upward shoots आएंगे. Now let's begin with the lesson properly. You know that plants are living things. Just as our body is made of different parts. आपको सबको पता है प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग्स है. जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऐसी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स प्लांट्स के भी होते हैं. द बॉडी ऑफ अ प्लांट ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स. द बॉडी के, एज आई टोल्ड यू, बॉडी ऑफ अ प्लांट ऑल्सो हैज अ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. रूट्स हो गई, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, ये भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट के. Let us read about these parts. अब हम इन parts के बारे में briefly पढ़ेंगे. Parts of a plant. Part of a plant. The body of a plant is divided into 2 systems. The root system and the shoot system. जो एक plant की body होती है वो 2 systems में divided है. एक root system जो नीचे under the ground होती है और एक shoot system above the ground. The root system. What is the root system? The root system is the underground part of the plant. जो root system होता है वो underground part होता है ground का. It consists of the main root and its branches. उसमें क्या क्या consist होता है? Roots होती है, कुछ branches. The main part of it is called, the main root is called the primary root. जो main root होती है उसको कहते हैं हम एक primary root. Learn this. And its branches are called the secondary root. जो उस plant की branches होती है उसको क्या कहते हैं? secondary roots कहते हैं. The tip of the root is covered with very fine hair called roots. जो टिप होती है उसकी वो किससे कवर्ड होती है? वेरी फाइन हेयर लाइक रूट्स होती है ना, उसकी टिप उससे कवर्ड होती है. There are 2 types of roots, tap root, tap root and fibrous root. हमारे पास 2 types के roots होती है, एक tap roots होती है, एक fibrous roots होती हैं. Tap root क्या होती है? It has main root from which smaller roots grow. टैप रूट वो होती है जो मेन रूट होती है उसमें से छोटी छोटी रूट्स ग्रो करती हैं. प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट हैव टैप रूट्स. प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कैरेट में आपने देखी होगी रूट्स निकलती हुई, रेडिश में भी देखी होगी, बीट रूट में भी देखी होगी रूट्स निकलती हुई, कुछ अनियन होती है उनमें भी रूट्स निकलती हैं. फिब्रस रूट्स. व्हाट आर फिब्रस रूट्स? Fibrous roots, when a number of roots grow from the end of the stem. जब एक स्टेम की एंड में से बहुत सारी नंबर ऑफ रूट्स ग्रो करती हैं, दैट इज आवर फिब्रस रूट. दैट इज फिब्रस रूट. प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस एंड अनियन हैव फिब्रस रूट. प्लांट्स हो गए जैसे व्हीट, राइस हैव फिब्रस रूट्स. में क्या होती है? फिब्रस रूट्स होती हैं. नाउ द रूट. नाउ द फंक्शंस of roots are as follows. अब we will study the functions of roots के क्या क्या functions होते हैं. The functions of roots are follows. The roots fix the plant in the soil. जो एक root होती है वो plant को soil के अंदर fix करके रखती है, रोक के रखती है. The roots provide water and minerals to the plant which they take from the soil. root क्या करती है? water भी provide करती है, minerals भी provide करती है और फूड भी प्रोवाइड करती है विच दे नीड फ्रॉम द सॉइल, जो उनको सॉइल से चाहिए होता है. प्लांट्स लाइक कैरेट एंड टर्निप स्टोर फूड इन देयर रूट्स. प्लांट्स होते हैं जैसे कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं अपने फूड को? क्या उसके रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं. एज अ रिजल्ट दे हैव द थिक
दे हैव थिक swollen roots. उसके रिजल्ट की तरह उन पे क्या होती है, swollen roots होती है उनकी. We eat the roots of such plant. हम उन roots को खाते हैं. Like we eat carrot ना, तो we eat the roots of such plants. Now the roots क्या होती हैं? The root system is the part of the plant. जो रूट सिस्टम होता है वो प्लांट होता है above the ground के above. It consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. ग्राउंड के above क्या होता है? ग्राउंड के नीचे तो रूट होती है, ग्राउंड के above होता है stems, branches, leaves, flowers and fruit. The stem it grows above the ground. जो stem grow above the ground grow करती है. The stem it grows above the ground. जो stem ground के above grow करती है. Big trees like neem and mango have a thick wooden stem called the trunk. जो आपने बिग ट्रीज देखी होगी उनके वुड और उनकी थिक स्टेम होती है, उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं वी कॉल देम एज द ट्रंक. फॉर एग्जांपल नीम ट्री हैज अ ट्रंक, पीपल ट्री हैज अ ट्रंक. इट इज़ यूजुअली ब्राउन इन कलर. उनकी ट्रंक किस कलर की होती है? इट इज़ यूजुअली ब्राउन इन कलर. उनका कलर होता है ब्राउन. Some plants like rose, मेहंदी and तुलसी have thin woody stems. Such plants are called shrubs. कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक रोज, मेहंदी एंड तुलसी, उनकी बहुत थिक स्टेम होती है, उनको क्या कहते हैं हम? वी कॉल देम सच प्लांट्स एज श्रब. उनको वी नेम देम एज श्रब्स. सम प्लांट्स लाइक स्पिनच, ग्रास एंड मिंट हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. कुछ होते हैं प्लांट्स जैसे स्पिनच एंड मिंट एंड सॉफ्ट, उन पे क्या होती है? सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स होती है, उनके हम पत्तियों को खाते हैं ना. सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. उनको क्या कहते हैं हम? हर्ब्स कहते हैं. Some plants like the pea plant and the money plant have weak stems. कुछ plants होते हैं, pea plant हो गया, जैसे money plant हो गया, उनकी कैसी stem होती है? weak stems होती है. उनको किसी चीज़ की support चाहिए होती है ऊपर move करने के लिए, to move forward. तो उनको क्या कहते हैं हम? climbers कहते हैं. those who climb on the rope or on the stick. They need the support of another tree or wall. उनको support चाहिए होता है another tree या wall की to grow upward. Such plants are called climbers. We call them as climbers. Plants like the pumpkin and gourd have very weak stem. जो plants होते हैं, pumpkin हो गया, bitter gourd हो गया, उनकी कैसी होती है? weak stem होती है. They grow along the ground. Such plants are called creepers. जो ground में grow करते हैं, वो नीचे नीचे फैलते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं. बिकॉज उनके पम्पकिन बहुत हैवी होता है, इट कैन नॉट ग्रो अप वरना नीचे नीचे फैलते रहते हैं. लाइक वाटरमेलन प्लांट ऑल्सो. द फंक्शन ऑफ स्टेम आर एज फॉलो. जो उनका फंक्शन होता है वो ऐसे फॉलो करता है. द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट. जो स्टेम होती है उसकी वो ऊपर की तरफ होल्ड करके रखती है प्लांट को. द स्टेम सपोर्ट्स द ब्रांचेस एंड द लीव्स. किसको सपोर्ट करती है स्टेम? उनकी ब्रांचेस को और लीव्स को. नाउ लेट्स सी द डायग्राम. These are the roots of a plant जो ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं. This is the stem of the plant. These are the fruit of a plant. This is the leaf of a plant. This is the flower of a plant. So this is the bud of a plant. This is the branch of a plant. ये ऐसे ऐसे different body parts होता है plants के भी. Now fig white. Plants like the cactus do not have leaves. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस, उनमें लीव्स होती ही नहीं, उनमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं. देयर फूड इज मेड इन देयर ग्रीन स्टेम्स. उनका फूड कहाँ पे बनता है? उनके ग्रीन स्टेम्स के अंदर ही बनता है. माउल्स एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. जो कुछ माउल्स देखे आपने मशरूम्स खाए हैं, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. वो ग्रीन नहीं होते. दे कैन नॉट मेक देयर फूड. वो क्या नहीं बना सकते? अपना फूड खुद नहीं बना सकते. They get their food from dead and decaying plants and animals. उन्हें अपना फूड कहाँ मिलता है? डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से अपना वो फूड बनाते हैं. Now next page. Green. The stem transports water and minerals from the roots to the part of the plant. जो stem होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में रूट्स से. सिमिलरली इट कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स. वो भी कैरी करती है जो फूड लीव्स बनाती है ना. जैसे योर मदर मेक्स योर फूड, लाइकली द लीव्स मेक द फूड फॉर द होल प्लांट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. इन सम प्लांट स्टेम्स ग्रो अंडरग्राउंड. कुछ प्लांट्स
कुछ प्लांट्स में स्टेम्स जो होती है अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं एंड स्टोर फूड, और वो वहाँ पे अपना फूड को स्टोर करके रखती हैं. पोटैटो, अनियन एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम दैट वी ईट. पोटैटो आपने देखा है कहाँ उगता है, अंडरग्राउंड उगता है. अनियन, जिंजर ये भी अंडरग्राउंड होता है, वो हम खाते हैं. आर द स्टेम्स, वो स्टेम्स है जो हम खाते हैं. द लीफ, इट इज द मोस्ट, क्या होती है लीफ? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. लीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. लाइक योर मदर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ योर हाउस. शी cooks the food for you. Likely the leaves also makes the food for the whole plant. The plant and broad part of a leaf is called the lamina. जो plant का broad part होता है उसको क्या कहते हैं हम? lamina कहते हैं. In the middle of the leaf it is main called the midrib. जो उसका मिडल ऑफ द लीफ होता है उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन होता है. उसको क्या मेन ये होता है, उसको क्या कहते हैं? हम मिडरिब कहते हैं. A number of slight veins arise from the main vein. जो नंबर ऑफ स्लाइड्स होती है वो कहाँ से अराइज करती है? मेन वेन से अराइज करती है. उसमें से द वेन ब्रिंग्स वाटर टू द लीफ. वेन्स में वाटर कौन लाता है? लीव्स लाती हैं. द ग्रीन लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री. जो एक ग्रीन लीफ होती है उसमें सबसे ज़्यादा फूड होता है, वो क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं उसको. Like you can see in this picture, it is the side vein जो इस साइड में होती हैं. This is the main vein है ये. This is called the lamina. Okay. Here it gives the oxygen. From here it inhales the carbon dioxide and sun rays. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और सन रेज जिससे वो फूड बनाते हैं. और वाटर भी. नाउ ग्रीन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, it has been scientifically proven that plants respond to the music. ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है. जो प्लांट्स होते हैं ना वो म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड करते हैं. दे ग्रो फास्टर इन प्लीजेंट म्यूजिक वाइल अ नॉइस और अ हार्श साउंड अफेक्ट्स देयर ग्रोथ. वो एक प्लीजेंट म्यूजिक में बहुत अच्छे से ग्रो कर लेते हैं और जो हार्श साउंड्स होती हैं वो उनमें ग्रो नहीं करते, वो उनको अफेक्ट करती है. Now, food factory. A green leaf is the food factory और किचन ऑफ अ प्लांट. ग्रीन लीफ क्या है? फूड फैक्ट्री है या फिर किचन है एक प्लांट की. दिस इज बिकॉज इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. वो किसकी हेल्प से फूड प्रिपेयर करती है? एयर की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से. क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द मोस्ट प्लांट. क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर सब्सटेंस है. वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. द फंक्शन ऑफ अ लीफ आर एज फॉलोज. फंक्शन के लीव्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं. लेट्स रीड दैम. ग्रीन लीव्स प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. ग्रीन लीव्स जो होती हैं, कितनी बार बताया मैंने कि वो फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए. सिंस लाइट इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड, प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फिर भी लाइट रिक्वायर होती है, सनलाइट फूड बनाने के लिए. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ रखना. सेकेंड पॉइंट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. फूड जो लीव से प्रिपेयर होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. In some plants, extra food is stored in the leaves. कुछ plants में extra food कहाँ पे store होता है? Leaves में store होता है. We eat the leaves of plant like cabbage and spinach. हम उनके फिर leaves को खाते हैं. spinach के leaves को खाते हैं. आप cabbage के leaves को खाते हो ना, क्योंकि उनमें food store होता है. Leaves help a plant to breathe through stomata. Leaves किस में help करती है? plants को breathe करने में, stomata के through. The leaf of some plants like grapevine and pea plant help them in climbing. कुछ लीव्स होती हैं, grapevine हो गई या फिर कौन सा प्लांट है, pea plant हो गया, वो उनको क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. The flower, it is the most attractive part of the plant. जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? वो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. The flower first appears as a bud on the stem. फ्लावर कैसा होता है? एक बर्ड की स्टेम में उस पर प्लांट पे अपीयर होता है छोटा सा. Some flowers are bright and colorful. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? ब्राइट भी होते हैं और कलरफुल भी होते हैं.
Some also have a sweet smell. उनकी कुछ की कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर स्मेल होती है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है. मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. वो कैसे ग्रो करते हैं, फ्रूट्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं, छोटे से बड़ा होते चले जाते हैं. फिर मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. कुछ के अंदर सीड्स भी होती हैं. मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. कुछ न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, सीड की फॉर्म में ग्रो करते हैं. सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के. वी ईट सम फ्लावर्स. हम कुछ फ्लावर्स को क्या करते हैं, हम खाते भी हैं. फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स ऑफ कचनर एंड पम्पकिन आर कुक्ड एंड ईटन एज वेजिटेबल्स. कुछ प्लांट्स होते हैं पम्पकिन की तरह, कचनर की तरह, उनको हम खाते भी हैं. ईटन एज वेजिटेबल की तरह खाता है. वी ईट द बर्ड्स ऑफ ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर. हम जो कॉलीफ्लावर आपने देखा, ब्रोकली देखी, ग्रीन कलर की होती है. वी ईट दैम एज द फूड. फ्रूट्स क्या होते हैं, दे प्रोटेक्ट सीड्स इनसाइड देम. वो क्या करते हैं, जो उनके अंदर सीड्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, पीच एंड प्लम हैव ओनली वन सीड. कुछ फ्रूट्स होते हैं, मैंगो हो गया, प्लम हो गया, उनमें कुछ एक ही सीड होती है. आपने देखी होगी उनके अंदर एक ही सीड होती है. वाइल अदर्स लाइक पोमीग्रेनेट, पपाया हैव मैनी सीड्स. आपने देखो पोमीग्रेनेट हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, उसके अंदर बहुत सारी एन नंबर ऑफ सीड्स होती हैं इनसाइड दैम. विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, ड्रॉ द योर इन योर नोटबुक. जो भी आपका फेवरेट फ्रूट हो वो आपको वो अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है. सीड्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. सीड्स क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का. When the seed gets enough air, जब सीड को enough air मिल जाती है, water and sunlight, it grows into a young plant called seedling. जब सीड को enough वो मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है, वाटर भी मिल जाता है, वो एक छोटी सी पार्ट में ग्रो करता है, उसको क्या कहते हैं, हम सीडलिंग कहते हैं. The development of a seed into a seedling is called germination. जब वो सीड एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, जो डेवलप हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जर्मिनेशन कहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. दिस वाज अ वेरी नाइस लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन केयरफुली. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.